Hello dosto, welcome back to yet another video of strategic management. And it's been a long time we have studied strategic management, and so now we will start with study note 10, as you can see on the screen, which is formulation and implementation of strategy. Right, so without wasting much time, let's begin. As you can see on the screen, first is study note 10.1, strategy formulation function wise, and here we have formulation of strategy in it. Formulation of strategy in it, right? So there are some few points. Develop and evaluate strategic alternatives. What is formulation of strategy? It means कि आप strategy को कैसे formulate करेंगे, कैसे आप उसको बनाएंगे, right? The first point is develop and evaluate strategic alternatives. You will develop and evaluate the alternatives. Alternatives means the choices you have for making strategies. You will evaluate that कि आपके पास कौन कौन से chances हैं, कैसे कैसे आप strategy को evaluate कर सकते हो, कैसे कैसे आप उसको develop कर सकते हैं. वो करने के बाद what you will do, you will correct the weaknesses and guard against threats. Guard against threats means, let me take an example. If you are using a laptop or a desktop, then there might be some viruses which are known as threats, right? So you will be using antivirus against it. So antivirus acts as a guard against viruses. So you will be in the same way, you will be checking for strategies that if there are any threats, then you will be guarding against it, right? Now the third point is match organizational strengths to environmental opportunities. आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है, जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की, इसको आपको एक बिजनेस की तरह सोचना है. दैट इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन स्ट्रेटेजी एंड फॉर्मुलेट इट, सो what steps you will consider in your mind. The first one is develop and evaluate strategic alternatives, then correct weaknesses and guard against threats. The third one is match organizational strengths to environmental opportunities. कि एनवायरमेंट में बाहर आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स को मैच करोगे, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे. फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस जियो, द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव राइट नाउ, विच इज़ इन ऑल ऑफ आवर माइंड्स. कि जब सब प्राइसेस बढ़ रहे थे इंटरनेट के बहुत ज़्यादा, सब कंपनीज ने, टेलीकॉम ने बढ़ा दिए थे, एयरटेल एंड अदर कंपनीज ने, आइडिया, वोडाफोन, तो जियो ने फ्री डेटा प्रोवाइड किया, and that is the thing, they have matched the organizational strengths with environmental opportunities. Okay, now select appropriate strategies for all levels in the organization that provide relative advantage over competitors. So you have to select appropriate strategy for all levels in the organization that provide relative advantage over competitors. इसमें भी आप रिलायंस जियो का एग्जांपल ले सकते हैं. आई डोंट थिंक और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसमें, बिकॉज इट्स वेरी इजी. Now the second point, this was for formulation of strategy. Now coming to implementation of strategy. How implementation of strategy is done. First of all, you will just a minute. Institutionalization of strategy. You will divide the strategy according to the sectors or departments in your organization. Then you will set proper organizational climate. Means the environment of the organization should be good. You have to set it. Then that there are no fights between employees and all that stuff. Then developing appropriate operating plans. You need to develop appropriate operating plans, that how your organization will operate, what are the factors they will consider before operating and all that stuff. Then developing appropriate organization structure. Structure, like I would say, if you will go in corporate, you will see that there is a proper structure. Like first might be there is an analyst, then senior analyst, then team leader, then assistant manager, then manager. So this is a structure, like how you have to report to the people. So it should be appropriate organization structure. You need to develop it before implementation of strategy. Okay, so these are the 4 points. Now coming to the next, that is strategy formulation function wise. So strategy formulation function wise. Strategy often require changes in the way an organization is structured for two major reasons. Structure largely dictates how objectives and policies will be established, and structure dictates how resources will be allocated. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फंक्शन वाइज मीन कि आप फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको कैसे स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करोगे. तो उसमें इसने 2 रीज़न मेन बताया कि क्या क्या आपको चेंजेस मेन चाहिए होते हैं एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए. दैट इज़, फर्स्ट वन इज़
हाउ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज विल बी एस्टेब्लिश्ड, स्ट्रक्चर बताता है कि आपकी पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स कैसे एस्टेब्लिश किए जाएंगे, कैसे कैसे काम होगा, एंड कौन कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज स्ट्रक्चर डिटेल्स हाउ रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड, और उसके लिए आपको कैसे रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे, ठीक है। सपोज इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट, तो आपको उसके लिए लैपटॉप दिया जाएगा, और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो सब प्रोवाइड किया जाएगा. सो इन दिस वे स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म. Okay, how objectives and policies will be established and how resources will be allocated. So this is strategy formulation function wise. Coming to the next point, we have production strategy. The main part starts from here. First one is production strategy. Now what is production strategy? If you already know, then let me know in the comment section what you think about production strategy. Okay, so now let's begin. The key to successful survival of an enterprise as an independent unit is how efficiently production activity is managed. एक सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए, एक एंटरप्राइज के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर उसको सर्वाइव करना है आज तक इंडिपेंडेंटली, उसको एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह सर्वाइव करना है अगर इस इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उसके लिए क्या चेक होता है कि उसने अपनी कितनी एफिशिएंसी से अपनी प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन एक्टिविटी को कितनी एफिशिएंसी से मैनेज किया हुआ है, ठीक है. द टू मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू बिजनेस फेलियर्स आर, बिजनेस फेल क्यों होते हैं, दो मेजर फैक्टर्स हैं उसके, वाई बिजनेस फेल्स इज दैट ऑब्सोलेसेंस टू प्रोडक्ट लाइन एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन कॉस्ट. क्या तो आपने प्रोडक्ट लाइन का ध्यान नहीं दिया सही से, प्रोडक्ट लाइन को सही से मैनेज नहीं किया, या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो आपकी बहुत ही ज़्यादा थी कि आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ. तो ये दो मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो जाते हैं. इसलिए अगर आपको सर्वाइव करना है इंडस्ट्री में, तो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी जो है आपकी कंपनी की, ठीक है, अगर आप कंपनी हो या आप ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपकी प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए, कि आपकी कॉस्ट लिमिटेड होनी चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, जिससे आपका रेवेन्यू ज़्यादा आ जाए, और प्रोडक्ट लाइन स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए. नाउ हाउ टू फॉर्मुलेट प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेट करोगे आप इन 5 स्टेप्स के साथ, because if you don't formulate production strategy, then there are high chances that you will face loss in the industry. Coming to the point of formulating production strategy, we have 5 points. The following steps are involved in the formulation of production strategy. What are these steps? Setting organization objective. सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या. देन यू विल इवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो उसको कैसे बेटर करें एनवायरनमेंट को, जिससे हम ये सब चीज़ें वहाँ पे कर पाएँ. देन सेटिंग क्वांटिटेटिव टारगेट्स. क्वांटिटेटिव टारगेट्स आपको यहाँ सेट करने होते हैं, इसका मैं एग्जांपल दूंगा व्हेन वी विल रीड इट इन डिटेल, तो इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो. सेटिंग क्वांटिटेटिव टारगेट्स, ठीक है, नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. देन परफॉर्मेंस एनालिसिस यू विल डू, एंड देन चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी, how you will choose which strategy you need to apply. Coming to the first point, we have setting organization's objectives. Let's read in detail. The key component of any strategy is to set the long-term objectives of the organization. कहीं पे भी अगर आपको स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले की कंपोनेंट ये होगा इसमें, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में, कि आपको कंपनी के आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको पहले वो लिखना पड़ेगा. लाइक अगर सिंपल केस में बात करूं, अगर आप सीएम में कर रहे हो, ठीक है, और आप किसी भी स्टेज में हो, ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको करने के लिए, कि आप क्या करना चाहते हो आगे सीएम में बनने के बाद, वो आपको पहले से ही सेट करना पड़ेगा. तभी आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि आप ऐसे ऐसे पढ़ोगे, ये चीज़ें करोगे, तब आगे वो आपको आगे हेल्प करेंगी सीएम में बनने के बाद, ठीक है. तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है. द की कॉम्पोनेंट ऑफ एनी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट इज टू सेट द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ नॉन दैट स्ट्रेटेजी इज जनरली अ मीडियम फॉर रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये बताया गया है कि जो स्ट्रेटेजी होती है वो एक जनरली एक मीडियम होती है. किस चीज़ के लिए मीडियम होती है, किस में हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में. जैसे मैंने बोला, सीएम में करने के बाद आपको जो करना है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और जो आप उससे स्ट्रेटेजी बनाओगे वो एक मीडियम है उस चीज़ को पूरा करने के लिए. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजी इज जनरली अ मीडियम फॉर रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है. आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड. Coming to the next point, we have strategy includes both the fixation of objectives as well as the medium to be used to realize those objectives. Strategy includes both the fixation of objectives as well as the medium to be used to realize those objectives. Strategy में दोनों चीज़ें आती हैं,
जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स अपने फिक्स करते हो वो भी, और उसको कैसे अचीव करोगे वो उसका मीडियम बन जाती है वो भी। ठीक है, दोनों चीज़ें आती हैं। लाइक आप सीएम में कर रहे हो, सीएम में बनेगा आपको जो करना है वो आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और आप उसके लिए जो स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे वो चीज़, वो दोनों स्ट्रेटेजी में ही इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आप कनेक्ट कर सकते हो। नाउ द स्ट्रेटेजी इज अ वाइडर टर्म विच बिलीव्स इन द मैनर ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजी जो है एक बहुत बड़ी वाइडर टर्म है। ठीक है, वाइडर टर्म है जो किस में बिलीव करती है, रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने में। डिप्लॉय मतलब बांटने में, जिससे कि हम अचीव कर पाएँ अपने ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, वाइल फिक्सिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी एनालाइज्ड बिफोर द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। The words are typical to understand. Let us read this again. While fixing the organizational objectives, it is essential that the factors which influence the selection of objectives, यहाँ तक पढ़ते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स कर रहे होंगे तो ये एसेंशियल है कि हमें वो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव के सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हों। ठीक है, कब देखने पड़ेंगे? उन ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करने से पहले। ठीक है, और एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिले इस लाइन की, कि व्हेन यू विल बी डूइंग सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, और वो आप ये क्यों करेंगे? क्योंकि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या करना है? फिक्स करने हैं। तो इसमें वही लिखा है, वाइल फिक्सिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इट इज एसेंशियल दैट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस the selection of objectives which influence the factors which influence the selection of objectives must be analyzed before the selection of objectives। ठीक है, ये आप एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ना that you have to do selection of objectives and then you will consider the factors that will influence that selection of objectives, right? And why are you doing it? Because you need to fix the organizational objectives. Now once the objectives and the factors influencing strategic decisions have been determined, once you will determine the factors and the objectives including strategic decisions, it is easy to take strategic decisions. Okay, so you can easily take strategic decisions once you analyze the factors and the selection of objectives. So this was setting organizational objective. Let us summarize in short what is setting organizational objective, कि आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हैं। ठीक है, कि आपको क्या अचीव करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी में क्या क्या आता है? स्ट्रेटेजी एक मीडियम बन जाता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बट स्ट्रेटेजी दोनों चीज़ें होती हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लॉन्ग टर्म, और आप उसके लिए कैसे काम करेंगे, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, वो स्ट्रेटेजी में ही सब कुछ इंक्लूड होता है, वो एज अ मीडियम काम करती है। ठीक है, और स्ट्रेटेजी उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट करते हैं, जिससे कि हम रिसोर्स को डिप्लॉयमेंट करते हैं रिसोर्सेज का, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो ये था सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। नाउ कमिंग टू evaluate the organizational environment. Just a minute, let me have some water. Evaluating the organizational environment. The next step is to evaluate the general economic and industrial environment in which the organization operates. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इवेल्युएट करना जनरल इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। आपको क्या समझ में आ रहा है? आप हेडिंग से देख सकते हो, इवेल्युएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, क्या ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट अपना चेक करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी ऑपरेट करता है कि वो मतलब उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या उसके डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। दिस इंक्लूड्स अ रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस competitive position. It is essential to conduct a qualitative and quantitative review of an organization existing product line. हम देखेंगे कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिटर क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, उसमें ये बहुत एसेंशियल है एवेल्युएट करने में कि हम कंडक्ट करें एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव रिव्यू, जिसमें हमें दोनों चीज़ें पता चल जाए हमारी प्रोडक्ट लाइन की, जो हमारी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है, कि हमारा कितना प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या कॉस्ट आ रही है, क्या क्या चीज़ हो रही है, एफिशिएंटली मैनेज हो पा रही है या नहीं, वो सब हम एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट हम एक तरीके से चेक करते हैं। पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ सच रिव्यू इज टू मेक श्योर दैट द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस इन द मार्केट कैन बी डिस्कवर्ड सो दैट द मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एज वेल एज देयर कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। पर्पस यही है कि हम देख लें जो भी हमारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है हमें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे कॉम्पिटिशन में हम आगे निकल सकें, उसके लिए जो भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कवर कर पाएँ।
ठीक है, जिससे कि मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रेंथ पता चल पाए, मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई देयर ओन स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल पाए कि कहाँ कहाँ उनको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, एज वेल एज देयर कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स की भी उनको पता चल पाए कि उनके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। इसलिए हमें ये ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को रिव्यू इवेलुएट करना पड़ता है। After identifying its strengths and weakness, an organization must keep a track of competitors' moves and actions so as to discover probable opportunities of threats to its market or supply sources. आइडेंटिफाई करने के बाद स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंप्यूटर को भी देखना पड़ता है, कंप्यूटर क्या करने वाला है, क्या वो एक्शन लेने वाला है, जिससे कि वो प्रोबेबल जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल रही हो कंप्यूटर से पहले वो उसमें कुछ भी स्ट्रेटजीज ला के, अपनी स्ट्रेटजीज लगा के वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर ले, ठीक है, जिससे कि उसके लिए वो थ्रेट ना बन जाए, ठीक है, टू इट्स मार्केट और सप्लाई सोर्सेज। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें भी आप रिलायंस जियो का एग्जांपल ले सकते हो। इफ़ यू विल सी दैट कि जियो ने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस एनालाइज करी होगी, उसने देखा कि कंप्यूटर क्या क्या और कंप्यूटर क्या क्या मूव ले रहा है, ठीक है, उस हिसाब से जियो चलता गया। एंड आज आप देख ही सकते हो मोनोपोली एक तरीके से हो गई है जियो की, रिलायंस जियो की, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू इवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो आधा काम मत करो, सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो। So now we will proceed with the next step, that is setting quantitative targets. As I told you, I will give an example, but first let us read what it is written here. In this step, an organization must practically fix the quantitative target values for some of the organizational objectives. The idea behind this is to compare with long-term customers so as to evaluate the contribution that might be made by the various product zones or operating departments. अब हम एक तरीके से एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज यू आर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में आपके मैनेजर ने आपको बोला दैट यू हैव टू जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है, एंड द वन प्रोडक्ट कॉस्ट इज 1000 रुपीज़। सो इफ़ यू विल सेल 100 प्रोडक्ट्स ऑफ दैट 1000 रुपीज़, then you will get 1 lakh revenue? No, you will get the sale, but it is not the revenue. So how you will decide the revenue and all that stuff is that you need to fix the quantitative target values. Your manager will not ask you for the revenue, your manager will ask to sell this x units of this product. तो उससे क्या होगा, अगर उसको यूनिट डिटरमाइन होगी कि इतनी प्रोडक्ट सेल करनी है हमें, ठीक है, रेवेन्यू अपने आप जनरेट हो जाएगा जब यूनिट सेल होंगी, तो एक क्वांटिटेटिव टारगेट बन जाएगा। और एक क्वांटिटेटिव टारगेट बन जाता है तो हम उससे अपने लॉन्ग टर्म कस्टमर्स को एनालाइज कर पाते हैं कि हमारे कौन से कस्टमर्स कौन सी प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा यूनिट्स किसकी सेल हुई हैं। उससे हम एक एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो क्या खरीद रहे हैं और उनको हम लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू कंपेयर विद लॉन्ग टर्म कस्टमर्स, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म कस्टमर जो है उनसे कंपेयर करते हैं भाई वो क्या खरीद रहे हैं और दूसरे क्या खरीद रहे हैं, जिससे कि हम दूसरों को भी एक तरह से लॉन्ग टर्म बना सकें, यू कैन से दैट, ठीक है। तो इसलिए हम एक क्वांटिटेटिव टारगेट सेट करते हैं। So in this step, an organization must practically fix the quantitative target values for some of the organizational objectives, जिससे कि हम organizational objective को अचीव कर पाएँ। वो revenue भी हो सकता है, मोस्टली revenue और profit ही होता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। The idea behind this is to compare with long-term customers so as to evaluate the contribution that might be made by various product zone or operating departments. Operating department, you can take the sales department or you can take any other department, that depends. I have just given you the example of sales department here. So the next point is performance analysis. What is performance analysis? It includes discovering and analyzing the gap between the planned or desired performance. कि हमने क्या प्लान किया था और हम डिज़ायर्ड मीन्स क्या हमने अचीव किया परफॉर्मेंस में, उसके बीच में क्या गैप आया। जैसे कि हम, अगर मैं अपनी CME की उसमें बात करूँ कि हम पढ़ाई करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो आज हम 8 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, बट हमने 5 टॉपिक्स कंप्लीट किए, तो वो जो 3 टॉपिक्स नहीं हुए वो गैप क्यों आया, 3 टॉपिक्स क्यों नहीं हो पाए। सो वैसे ही परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है कंपनीज में, वो डिस्कवर करते हैं और एनालाइज करते हैं गैप क्यों आया प्लान्ड और डिजायर्ड परफॉर्मेंस में। A critical evaluation of the organization past performance, present condition and the desired future conditions must be done by the organization. एक क्रिटिकल एवेल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन किस किस का करना चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस कि पहले उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, अभी की कंडीशन क्या है और फ्यूचर में कंडीशंस क्या होने वाली हैं, उस सब का एवेल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को जरूर करना चाहिए अगर वो इंडस्ट्री में सर्वाइव करना चाहती है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी पहले की परफॉर्मेंस कैसी थी, जैसे फिर से मैं वहीं पे लाता हूँ जिससे आप लोग समझ पाओ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पहले परफॉर्मेंस कैसी थी, अभी कैसे आपने इंप्रूव किया नहीं किया, वो आपको खुद पता चल जाता है। मेरे को तो पता चल जाता है, तो आपको भी आई थिंक पता चल ही जाता होगा, ठीक है, आपकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है और आपके फ्यूचर में कंडीशन कैसे होने वाली है, वो आप डिसाइड करोगे। डिजायर्ड फ्यूचर कंडीशन आपकी क्या है, राइट। तो दैट इज ऑल्सो एवेल्यूशन, क्रिटिकल एवेल्यूशन शुड बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ठीक है, उसी वे में। दिस क्रिटिकल एवेल्यूशन आइडेंटिफाइज द डिग्री ऑफ गैप दैट परसिस्ट बिटवीन द एक्चुअल रियलिटी
एंड द लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, एक डिग्री ऑफ गैप पता चल जाती है एक्चुअल रियलिटी में और लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के उसको कैसे अचीव किया जाएगा, उसके बीच में जो गैप है उसको फुलफिल कर तो तभी करेंगे ना जब हमें पता चलेगा कि गैप क्या है। एन अटेम्प्ट इज मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टिमेट इट्स प्रोबेबल फ्यूचर कंडीशन इफ द करंट ट्रेंड्स परसिस्ट। कि अभी जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे रिलायंस जियो का एग्जांपल ले लूँ कि रिलायंस जियो की मोनोपोली चल रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी वही याद आ रहा है तो मैं उसी को कंसिडर कर रहा हूँ एग्जांपल को हर जगह। सपोज रिलायंस जियो की मोनोपोली चल रही है तो एयरटेल और जो बाकी कंपनीज़ हैं, जैसे कुछ लोग आइडिया वोडाफोन आई थिंक मर्ज भी हो गई, ठीक है, तो वो मर्ज क्यों हो गई, उन्होंने वो देखा कि फ्यूचर कंडीशंस क्या क्या रहेंगी करंट ट्रेंड को देखते हुए। जब जियो ने अपना मतलब बहुत अच्छे से आया, वो बूम के साथ आया, तो उसको देखते हुए उन्होंने देखा कि क्या क्या फ्यूचर कंडीशन हो सकती है, उस तरह से उन्होंने अपना क्रिटिकल इवेल्यूएशन किया और शायद इसी को चलते हुए वो दोनों कंपनीज मर्ज हो गई, ठीक है। तो ऐसा होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। Then last step is choice of strategy. This is the ultimate step and I would say the last step in strategy formulation. The best course of action is actually chosen. Best course of action is actually chosen after considering organizational goals, organizational strengths, potential and limitations as well as the external opportunities. ऊपर आपने सबकी स्ट्रेंथ देख ली, पोटेंशियल देख लिया, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसके पोटेंशियल्स हैं, क्या उसकी लिमिटेशन है और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सब एनालाइज कर लिया ऊपर, ठीक है। उसको देखते हुए आप एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट स्ट्रेटेजी अपने लिए चूज़ करते हो कंपनी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी चूज़ होती है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है जिसमें आपके 5 पॉइंट्स बनते हैं। मेन आपका यही था प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, कि आपको प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी कैसे करनी होती है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्टर की, इसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो जाता है। एक तो प्रोडक्ट लाइन सही ना होना और प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होना। वो कैसे कर सकते हो, फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी 5 स्टेप है, क्या क्या है, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे, इवेल्युएट करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बाद आप क्वांटिटेटिव टारगेट सेट करते हो, उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हो और उसके बाद आप स्ट्रेटेजी को चूज़ करते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में वही था कि आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, ठीक है, और स्ट्रेटेजी मीडियम की तरह भी काम करती है उनको अचीव करने के लिए, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं, राइट। उसके बाद इवेल्युएट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट की कैसा एनवायरनमेंट है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट लाइन का क्वांटिटी क्वालिटेटिव दोनों तरह का रिव्यू करना पड़ता है, जिससे कि आप स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगा पाओ और अपने कॉम्पिटिटर्स की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगा पाओ, जिससे आप कंपनी में सर्वाइव कर पाओ। उसके बाद क्वांटिटी टारगेट क्यों सेट करने होते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताया। और परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इंप्रूव करना है आगे फ्यूचर में तो आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस करना ही पड़ेगा। देन द लास्ट इज देन यू विल डिसाइड which strategy you will choose after considering all of the 4 above steps. Now here is a note important, please be informed that plant layout, plant location, plant building, maintenance of equipment, preventive maintenance will automatically get covered in operation management theory, hence these topics are not covered here. कुछ ये टॉपिक्स हैं प्लांट लेआउट, प्लांट लोकेशन, ये सब ऑपरेशन मैनेजमेंट की थ्योरी में भी हैं, तो आप जब ऑपरेशन मैनेजमेंट की थ्योरी को पढ़ोगे तो वहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे और ये स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के हिसाब से रेलिवेंट भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं। सो दिस इज़ इट। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो देन इस टॉपिक में यहाँ तक जहाँ तक अभी हमने पढ़ा, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I will definitely try my best to help you out and share it with your friends so that they can also take the benefit. In the next session, we will study marketing strategy and will complete the study note 10 at the earliest possible. So this is it. All the best and see you all in the next video. Do subscribe the channel if you haven't subscribed yet, and do not forget to like the video and share it with your friends as well. Let me know in the comment section if you find this video useful.